We'll start in a minute, okay? Let the link go everywhere and then we'll start a mission. Okay, good. Hmm, Chalo. Can we start, everyone? First of all, a very, very good afternoon. This is day 2 of your business laws. Okay. Now, if you have not watched yesterday's lecture, please do go and watch it. Yesterday we started off with Companies Act. Okay. So I'll just tell you in brief क्या क्या किया और आज क्या क्या करने वाले. What are we supposed to do today? Okay. We'll go in a very step by step process. Okay. Now, to start off with things today, CMA Interlaw. I'll also share you the mock paper, the model question paper also, and also the PDF will come after the lecture. Okay, as always. Now, what is going to happen is yesterday we completed with Companies Act. Okay, now everyone please pay attention. Company Act 2013 कल अपन ने पूरा go through किया था. I took it in a very quick manner because we had timing restraint also. But you might see 2 videos on the page because there was some connectivity issues. Okay, now after going through all the concepts, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट था और वो था आपका पीडीएफ. ठीक है, मैंने कंपाइलेशन किया था द मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स for your December 24 examinations. Now, what usually happens, I'll tell you. Pay attention. And even today's session is more important. Whenever you are like when you will start revising, अभी last days है आपके आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है. So you need something which is very valuable, जो टाइम कम में आपको ज्यादा आउटपुट देगा. Now it is impossible for you to sit with the module, or even on that matter, even for your class notes also, because there will be a bunch. The great thing is you can fill up the form. मैंने सभी subjects के PDF किए. Whatever subjects I teach, there are also PDFs which the other faculties have also done. Okay. To start off with, we started our journey with group 2. Like group 2 खत्म किया था. Now we have started with group 1. So talking specifically about law, yesterday company act के कुछ questions थे जिसका compilation किया था. आपने अगर वो print out किया before revising, considering your paper is first, the law is first paper, so आपको वो at top priority रखना है. ठीक है, उसमें question answers भी है, उसमें MCQs भी है. Okay, चलो. Now this consisted of your 40 marks. 40 marks का आपका ये पूरा content था. Now आज what we have to complete, आज काय करायचं आपल्याला. Secondly, please लक्ष द्या. And whatever time it is, see, I know it's theory, ethics is there. जब आपने सीखा रहेगा ethics classes में, तो कभी कभार ऐसा होता है सर बहुत बोरिंग है. Why are we supposed to do ethics and all that? Okay, हम लोग hardcore law करते हैं. We'll do industrial law, we'll do business law, we'll do company act. But let me tell you one thing. Out of 7 questions, you need to answer 5 questions. ये आपको already पता है. ठीक है. But even in the worst case scenario, अगर बाकी questions तो difficult आते हैं, let us say industrial law का तो difficult आता है, company act का difficult आता है, this is only going to help you, and that is ethics. Okay. तो आज क्या करेंगे? ethics तो cover करने ही वाले हैं, but ethics ऐसे cover करेंगे, will not leave anything. Okay. जैसे मैंने आपको क्लास में सिखाया है, वैसे मैं आपको ABCD से सिखाऊंगा. मेक श्योर कि आप ethics आज मेरे ही साथ खत्म कर रहे हो with question answers. Okay. We'll check every question answer which is there in your model. मतलब आपका ethics आज ही होना चाहिए पूरा रिवाइज. ओके, चलो. सो आज का टारगेट यही है अपना. Today's target is this, ethics. Next we'll focus on the business law, which is very important, Indian Contract Act. तो सबसे पहले खत्म करेंगे.
फिर सोगा खत्म करेंगे और लास्ट में एंड करेंगे आज का सेशन अपन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, ठीक है। कल भी अपन ने एक दिन रखा है, so tomorrow I'll take industrial laws, but this is our today's target, ये आपका आज का टारगेट है। और एक बात मैं आपको और एक चीज बोलता हूँ, ये 15, ये 10, 5 और एलएलपी ये पकड़ के 5 आता है, but make sure कि टुडे we will be completing approx 35 marks, yesterday we completed 40 marks, आज 35 marks का अपना टारगेट है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आई एम टेलिंग यू अगेन, wherever you are sitting, make sure आपका मॉड्यूल आपके साथ है, because see everybody will be seeing from all over India, the point is what, after ऐसा होता है इसका हमारे नोट्स में कुछ अलग है, तो उससे अच्छा मैं मॉड्यूल ही ले रहा हूँ, मॉड्यूल विल बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर, ओके। एंड मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इथिक्स पे तो बाकी कुछ रेफर भी मत करो, प्लीज टेक सीधा मॉड्यूल एंड प्लीज स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑल्सो टेल यू ऑल्सो कि इंस्टीट्यूट कौन से क्वेश्चन टारगेट करें, ठीक है, ये एक चीज हो गया। तो ये आज का अपना सेशन का टारगेट, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड, नंबर टू सर, ये जो मैंने कंपाइलेशन बनाई, दिस यू विल गेट द मोमेंट यू फिल अप द फॉर्म एंड यू विल गेट इट, ओके। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हिच आई वांट टू टेल यू इज दिस। आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपने देखा ही रहेगा, यू माइट हैव सीन दिस ऑलरेडी। नाउ आई हैव आल्सो टोल्ड यू यस्टरडे, इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड अपलोडिंग सेट 2 आल्सो, सेट 2 भी शुरू कर दिया है। अगर आपको पता नहीं है, मॉडल क्वेश्चन पेपर का साइट मिल जाएगा आपको, मॉडल क्वेश्चन पेपर में दो आपके सेट्स है, सेट 1 सेट 2, सेट 1 is already uploaded, set 2 अभी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। I'll tell you the status right of today, 3 papers are uploaded in your set 2, okay। बिजनेस लॉस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है up till now, so जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, इवन आगे जाके कुछ आता है, अगर कुछ लगता है कुछ अलग क्वेश्चन, तो आई अपडेट यू अबाउट दैट, बट राइट नाउ only 3 papers have been updated, मेरे हिसाब से टैक्स अपडेट हुआ है, अकाउंट्स अपडेट हुआ है, कॉस्टिंग has been updated, okay। चलो, now the reason why I'm showing you this model question paper is because of a very simple thing, understand the pattern। many students के दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा, सर क्या आप इथिक्स छोड़ सकते हैं क्या, सर क्यों इथिक्स करना है, मतलब इथिक्स इतना करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि when I go in the examination hall I don't remember only anything, म्हणजे त्यात काय लिहायचं हेच कळत नाही मला, मतलब हमको ऐसा लगता है कि सभी क्वेश्चन सेम ही है, तो व्हाट टू राइट इन दैट, उसके बाद एग्जाम में मार्क्स कट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहले ये चीज अपने दिमाग से निकालो कि इथिक्स इज ओनली फॉर द सेक ऑफ डूइंग, यू कैन एक्चुअली स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स इन इथिक्स, ओके। नाउ हैविंग कंसीडरिंग 15 मार्क्स का उसका कंटेंट है, तो सबसे पहले एक ट्रेंड समझ लो, सबसे जो क्वेश्चन यू हैव टू डू 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द 7, आपको ऑलरेडी पता है। जो पहला वाला आपका आ रहा है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आ रहा है, और ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आ रहा है, ठीक है। आज के कंपैरिजन के सभी क्वेश्चंस है, तो इसका मतलब है सर क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू व्हाट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ओके सर, ओके। नेक्स्ट, अगर आप ये चेक करेंगे, यहाँ पे आपका एलएलपी आएगा या पार्टनरशिप आएगा, और यहाँ पे आपका एनआई आ रहा है, ओके सर। क्वेश्चन 4 डेडिकेटेड टू कंप्लीटली योर इंडस्ट्रियल लॉस, ये इंडस्ट्रियल लॉ के लिए पूरा डेडिकेटेड है, ठीक है, जो अपन कल शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने ऑलरेडी कल लिया था, और वो आपका कंपनी एक्ट है, और ये भी आपका कंपनी एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 विल आल्सो गिव द सेम थिंग, सर ये भी कंपनी एक्ट है, ये भी कंपनी एक्ट है। हाँ, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका रहेगा, दैट विल बी डेडिकेटेड टू इथिक्स। Now, yes, having said all of this, आप ये ऑप्शन को छोड़ सकते हो, there is no problem at all, okay? But the only concern is what? एक ही छोटा सा पॉइंट, अगर एक क्वेश्चन बाउंसर आता है, तो अगर आपने इथिक्स नहीं किया है, तो शायद से ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ 5 आप 4 ही क्वेश्चन लिख के बाहर आओगे, तो उससे अच्छा इथिक्स करो, विल डू इट टुडे ओनली, ओके। 2 क्वेश्चंस आपको इथिक्स में पूछेंगे, 7A और 7B, ओके, कंफर्म है इन एवरी मॉडल क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B इज इथिक्स ओनली, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसमें से एक जो पेपर क्वेश्चन रहेगा वो आईसीए का रहेगा, और जो लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा वो आपका रहेगा कंपनी एक्ट का। वेरी वेरी सिंपल, दिस इज अ ट्रेंड व्हिच दे हैव बीन फॉलोइंग। यू पिक अप एनी गॉडडैम पेपर, यू पिक अप योर December 24, योर June 24, December 23, दो सेट, सब में आपको यही ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। हाँ, December 23 में 2 सेट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपको वो भी करना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर फॉलोइंग माय रिविजंस, अगर आप पीडीएफ करते हैं तो आपको कुछ करना जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ ऑलरेडी है, the MQ also and also your suggested answers also, past examination questions, okay। चलो सर, तो अपन जो आज करने वाले, स्टार्ट करने वाले अपन, वो इसके लिए करने वाले क्वेश्चन नंबर 7A और 7B के लिए, ठीक है। चलो, नाउ हैविंग सेड दिस, कैन यू स्टार्ट ऑफ विद इथिक्स पार्ट, एकदम इजी। और हाँ, कुछ थोड़े फार क्वेश्चंस है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बोल देता हूँ। बिजनेस इथिक्स में देयर आर 2-3 क्वेश्चन व्हिच आर एट द टॉप प्रायोरिटी। एक बार मैं आपको दिखाऊं कंपाइलेशन, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। बिकॉज सेम चीज अपन ने पहले भी फॉलो की थी, इफ यू आर फॉलोइंग माय ऑडिट का दिस लेक्चर, मैंने ऑडिट में वही किया था, सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन सेट किए थे एंड देन वी वेंट ऑन टू द कंटेंट। आज सर अभी अपन क्या कर रहे हैं,
एक बार मैं आपको पूरे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चंस है और आपको इथिक्स में कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। इनफैक्ट आपको ये वो आइडिया आ जाएगा कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। ठीक है, दिसंबर 23 सेट 1 में इन्होंने क्या पूछा था, समराइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इथिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स। ओके, इसमें अपन शुरू वही करेंगे, तीन प्रकार के इथिक्स है, मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड। विल स्टार्ट इन अ मिनट। अभी इसमें आपने को घुसना नहीं है, आई एम ओनली शोइंग यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर कमिंग फॉर इथिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन रिलेशन टू वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स। ओके सर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, in December 24 examinations they will target this, that is emotional intelligence। अगर आपने ethics पढ़ा रहेगा अभी तक तो उसके एंड में when ethics ends there is a concept called as emotional quotient, also called as emotional intelligence। उसमें एक दो क्वेश्चन ही है, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन परफेक्ट है फॉर 7 मार्क्स। तो दिसंबर 24 के लिए ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखो, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट एन इंटरनल कोड ऑफ इथिक्स एंड इट्स रेलेवेंस इन बिजनेस। ठीक है, वो एक बार कर लेंगे। यहाँ पे आपको फोकस करना है, व्हेनेवर दैट कंटेंट कम्स, यू टू फोकस ओवर देयर। एक्सप्लेन 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक लाइफ का मतलब क्या, पब्लिक ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। एक पब्लिक कमेटी बिठाई गई थी, उन लोगों ने 7 प्रिंसिपल्स किए थे। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके, आपको 7 प्रिंसिपल्स याद ही आने चाहिए। और इनफैक्ट इसके लिए मेमोरी टेक्निक भी है, अगर आपको याद नहीं आते हैं तो याद करना पहले देखो, अगर एक्सट्रीम वर्स्ट केस में नहीं आता है तो 7 प्रिंसिपल्स मेमोरी टेक्निक है, इजीली आपको याद आ जाएगा। जब आप लोग कंटेंट करेंगे तो मैं आपको इसके थ्रू लेके जाऊंगा, पर वो इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। एक बार वापस बोल रहा हूँ, इफ यू आर सिटिंग समवेयर इन लाइब्रेरी, इफ यू आर सिटिंग इन योर होम, सिटिंग इन क्लास, एनीवेयर यू आर सिटिंग, प्लीज मेक श्योर कि जितने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिर्फ आप रफ पे स्क्रिबल कर रहे हो। हाँ सर, ये करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे करना है, 7 प्रिंसिपल्स मुझे करने हैं, तो आपको आइडिया भी आ जाएगा, फ्लो में भी रहोगे, और मेरे साथ ही आपका 15 मार्क्स खत्म हो जाएगा इथिक्स का। सर ओके, इसके बाद दिसंबर 20 में सेट 1 में क्या पूछा था, जो अपना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनका एथिकल कंडक्ट पूछा था, बहुत इजी वाला है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इथिक्स एंड इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। क्या ये सेम क्वेश्चन जो पहले वाला आया था, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स, वापस पूछा उन लोगों ने, 7 मार्क्स। हाउ वुड यू इवैल्यूएट द इफेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन योर वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप। भाई साहब, इमोशनल इंटेलिजेंस देखने के बाद ऐसा मत करो कि यार मैं एक ही आंसर छाप के आऊंगा इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं है। उसमें भाई साहब 2 क्वेश्चन है, जो ऊपर एक देखा आपने और ये वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों भी स्पेसिफिक है। When I start telling you, I'll tell you. But remember one thing, this question is different from the earlier one. Okay. Analyze different kinds of business ethics with reference to application and decision regarding employers, finance, and trading. Very very important question. I'll tell you why. Because if you have not studied this question, अगर आपने ये question go through नहीं किया रहेगा और let us say एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो आपका दिमाग कुछ एक डिफरेंट एंगल कलेक्ट करेगा। क्यों? क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, analyze the different kinds of business ethics with reference to application in what, employers, finance and trading। ऐसा हो सकता है कि आपका जो आंसर है ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू पे रहेगा, सर एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉमन प्रिंसिपल्स है, कॉमन आंसर्स है इसके लिए। विल डू इट व्हेन आई टेक इट, ओके, आई हैव टेकन दिस एवरीथिंग, ओके, प्रोडक्ट का मॉडल खत्म कर देंगे। नेक्स्ट, गोइंग अहेड, डिस्कस द 4 एट्रीब्यूट्स कॉमनली यूज्ड इन डिफाइनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के अभी तक 3 क्वेश्चंस हुए, 3 क्वेश्चंस यू हैव पिक्ड अप फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। यस, नेक्स्ट, दिस इज द केस स्टडी। अच्छा, ये काउंटर क्या है, तो भाई साहब आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आप 11 क्वेश्चन आपको करने हैं इथिक्स के लिए। आई थिंक इज सफिशिएंट, एंड इवन इफ यू इन्वेस्ट टाइम, 1-1.5 घंटा भी आपने इसमें डाला ना, इट इज वर्थ इनफ, बिकॉज आप उसमें इतना तो 15 मार्क्स को 100% कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वी विल स्विच ओवर टू बिजनेस लॉ, दैट इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एवरीबॉडी विद मी? चलो, कैन वी स्टार्ट, यस और नो? चलो, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा ये वर्ड बाय वर्ड पढ़ना नहीं है आपको, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में कहां पे फोकस करना है। सबसे पहले इथिक्स, तो वो सब छोड़ो, इथिक्स का मतलब क्या वो पहले बताओ। सी, इथिक्स आर बेसिकली व्हाट, दीज आर द प्रिंसिपल्स इन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एवरी ह्यूमन बीइंग जैसे उसका बॉर्न एंड बॉटम होता है, ही इज मोल्डेड बाय अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, नाउ रिमेंबर वन थिंग, मैं 2 चीज के बारे में आपको एकदम परफेक्ट बोलता हूं, एक लॉ और एक इथिक्स। ठीक है, सर आपने ये 2 शब्द साइड में क्यों लिखे? द रीजन इज, इस पे भी एक एमसीक्यू पूछा है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। हाँ जी, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, और रिलेशन कैसा है पता है, वो रिलेशन कैसा है पता है, वो रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है,
वो रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैसे सर? लॉ जो है वो यूनिफॉर्म एप्लीकेबल है। वो कैसे एप्लीकेबल है? यूनिफॉर्म। इसमें भेदभाव नहीं किया जाता। आप मिनिस्टर हो, आपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया है तो आपको बख्श किया जाएगा। आपने 4 जन को उड़ाया वहां पे फुटपाथ पे, नहीं आप मिनिस्टर हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ विल बी एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी बिकॉज लॉ के हिसाब से ऐसा माना जाता है ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न और इक्वल ओनली, एवरीबॉडी इज इक्वल ओवर हियर। सो लॉ में कभी भेदभाव नहीं होगा। अच्छा एक चीज है सर, इथिक्स का जब बात करते हैं, व्हेन आई टोल्ड यू वन थिंग राइट नाउ कि इथिक्स विल डिफर, इट इज बेसिकली व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। नाउ फॉर सम पीपल समथिंग माइट बी राइट, फॉर सेम थिंग डिफरेंट पीपल इट माइट बी रॉन्ग। तो इसके लिए इथिक्स वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, इथिक्स वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, वो यूनिफॉर्म नहीं होता कभी। ये एक चीज दिमाग में डालो। तो इन लोगों ने नीचे एक एमसीक्यू पूछा है, मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि लॉ और इथिक्स का जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो कैसा है? एकदम सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। सो लॉ इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इथिक्स, ठीक है, वो भी आगे आएगा। सो एक दो तीन पॉइंट अगर आपके पास हाईलाइटर है तो आपको दो तीन चीज हाईलाइट करना है। Ethics is a set of rules that define right and wrong. सब कुछ हाईलाइट नहीं करना है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, पॉइंटर्स हाईलाइट करने हैं जहां पे आपका पूरा इथिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, इथिक्स से डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इथोस, ये तो इंपॉर्टेंट है, साइड से आपको पूछ सकते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 अपने अभी 11 क्वेश्चन जस्ट चेक किए। मैं आपको पहले ही बताया कि 11 क्वेश्चन जहां पे भी आएंगे वो आपको टॉप प्रायोरिटी में रखना है। तो आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सबका ध्यान है यहाँ पे। सर टाइप्स ऑफ इथिक्स। अच्छा आपको और एक चीज बोलता हूँ, कैन यू प्लीज पे अटेंशन फॉर 2 मिनिट्स, सेकंड लक्ष द्या। आणि मी परत सांगतोय, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सब लोगों का पढ़ाई हुआ है, ऐसे लॉ हो गया, इथिक्स हो गया, सब कुछ है, बट यू एक्चुअली नो कि अंदर से इथिक्स तुम्हारा कितना हुआ। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सर बाबा लेक्चर चालू है, ही इज टेकिंग द लेक्चर, आई जस्ट गेट ओवर हियर, ही विल टेल एवरीथिंग। नो, ऐसा नहीं। सच में डे एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, सो व्हाट आई फील इज आई फर्मली बिलीव इन राइटिंग। आप प्लीज लिखेंगे, आपका पूरा इथिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ इथिक्स, बहुत ही सिंपल है। इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड। मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड। अभी पॉइंट ऐसा है सर, ठीक है हम लोग को ये तो समझ में आएगा, चलो ये टाइप्स ऑफ इथिक्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं वहां पे मेटा इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स, अप्लाइड इथिक्स, बट आप एक सेंटेंस इजी करके बता सकते हो कि इसका मतलब क्या रहेगा। अरे मतलब पॉइंटर के नीचे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना मुझे, मैं थोड़ी ऐसा सिर्फ लिख के छोड़ सकता हूँ। हाँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। जब मेटा इथिक्स पे आप कुछ लिखोगे, मेटा इथिक्स इज बेसिकली द ओरिजिन्स एंड द मीनिंग्स, nature of moral judgment। मेटा, M stands for model, M stands for model, moral judgment यहाँ पे लिखता हूँ, moral judgment, moral judgment, just for your information। अगर मॉडल के नीचे का आपने एमसीक्यूज देखे, और मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि जो मॉडल के नीचे के एमसीक्यूज है ना इथिक्स के लिए, वही एज इट इज तुमको पूछेंगे, एज इट इज, एज इट इज बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे आप। सर अगर टाइप्स ऑफ इथिक्स के बारे में बोल रहे हैं, 3 प्रकार के ये डिवाइडेड है, मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड। मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड कैसे लिखेंगे आप? पहले वाला नहीं सर, मेटा इथिक्स डील्स विद नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, एम, एम का भी वही और ये भी एम स्टैंड करता है, ठीक है, मॉरल जजमेंट। ओके, इट लुक्स एट द ओरिजिन्स एंड मीनिंग्स ऑफ इथिकल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहां से आए। अरे ऐसा थोड़ी यार, लॉ का भी आप डील समझ लो, लॉ थोड़ी एक रात में आता है, कस्टम से भाई, पहले से आता है, वो पहले इवेंट होता है फिर लॉ आता है। तो सेम इज विद इथिक्स। अगर कुछ बिहेवियर है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो एप्लीकेबल है, घर पे भी एप्लीकेबल है, वो थोड़ी एक ही दिन में आने वाले भाई, तो उसका ओरिजिन कौन चेक करता है, दैट इज द कॉल्ड एज मेटा इथिक्स। सो इसमें दो चीज लिखता हूं मैं, मेटा इथिक्स, वन इज मॉरल जजमेंट एंड द सेकंड इज योर ओरिजिन, सेकंड इज योर ओरिजिन, सिंपल। ओके, वापस बोल रहा हूं, नीचे एमसीक्यू ऑलरेडी पूछा गया है मेटा के ऊपर, ठीक है, उसका आंसर मॉरल जजमेंट है। सेकंड, नॉर्मेटिव इथिक्स, सेकंड इज व्हाट, नॉर्मेटिव इथिक्स। सर नॉर्मेटिव का तो ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या, इट इज बेसिकली the content of moral judgment and the criteria of what is right or wrong। देखो भाई साहब, एक चीज राइट है या रॉन्ग है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स या कुछ क्राइटेरिया होता है, इसका ही मतलब है नॉर्मेटिव। यहां पे लिखता हूं मैं, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट और रॉन्ग। तो अगर आपको कुछ लिखना है उसमें आपके नॉर्मेटिव में, तो आप क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एज सिंपल एज दैट। सिंपल। नेक्स्ट, थर्ड वाला करेंगे अपन, एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन, अप्लाइड इथिक्स। सर अप्लाइड इथिक्स का ही मतलब होता है सर, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे जाता है, कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल लिखेंगे यहाँ पे प्लीज, कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। इसका मतलब सर दो तीन एग्जांपल दिए, वॉर, एनिमल राइट्स एंड कैपिटल पनिशमेंट। मैं कैपिटल पनिशमेंट की बात करता हूँ तो बहुत सारा ऐसा होता है कि अभी जो रिसेंटली पुणे में जो एक्शन हो गया ड्रिंक एंड ड्राइव का, तो बहुत जन का सोसाइटी का ऐसा भी होता कि नहीं, जिसने वो चलाया था गाड़ी उसको पहले क्या होगा, कैपिटल पनिशमेंट दे दो।
लेट हिम गिव सच अ डेंजर पनिशमेंट कि वो वापस क्या नहीं करे, ऐसा वो इंसिडेंट नहीं करे. सो दैट इज द व्यू ऑफ द सोसाइटी. वो लॉ ऐसा नहीं करेगा, लॉ तो कायदे से जाने वाला है. सो रिमेंबर वन थिंग, ये इथिक्स है. इथिक्स का मतलब क्या हो रहा है अभी अप्लाइड इथिक्स में, सर ये डील करता है ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए इंडिया में कि जहां पे लोग बोल रहे थे, सोसाइटी ये बोल रही थी नहीं यार इसका पनिशमेंट बहुत डेंजर चाहिए. Remember one thing, that's a point of view, right? And this only comes under what? Applied ethics. This only comes under what? Applied ethics. So, ladies and gentlemen, please tell me one thing. तीन प्रकार के आपके इथिक्स है. सबसे पहले टॉप पे क्या आता है? मेटा. उसके नीचे क्या आता है? सर नॉर्मेटिव. उसके नीचे क्या आता है? सर अप्लाइड. एक दो तीन दिमाग में आपको क्या रहेगा मुझे बताओ. मेटा का मतलब मैंने कैसे उसको बोला, को रिलेट करना है आपको. सर मेटा डील्स विद द मॉरल जजमेंट, नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट. मैंने आपको उसमें और एक वर्ड बताया क्या, ओरिजिन क्या है उसका, ओरिजिन. ये हो गया आपका. नेक्स्ट आपका आता है नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव का मतलब क्या, क्राइटेरिया फॉर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. लास्ट में क्या आता है? अप्लाइड. अप्लाइड एथिक्स डील्स विद व्हाट? सर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स. समझ में? एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट. अभी आपको कितना समय लगेगा ये लिखने को रे? And I think this is the most easiest. If they ask you, you can write down this. Okay? Everybody okay with this? Yes or no? And please tell me. क्या आपके दिमाग में गया है क्या नहीं है? Yes or no? चलो नेक्स्ट, कैन वी गो ऑन टू स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे. मैं आपको वापस बोलो पूरा मॉड्यूल खत्म कर देंगे. ठीक है? तो मेरा कहीं टेंशन ना कोई इथिक्स. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स. मैं आपको एक चीज और एक बोलता हूँ कि भाई साहब दो चीजें, एक इथिक्स है और एक बिजनेस इथिक्स है. Ethics is normal, which is applicable to everybody, okay? But when I talk about business ethics, it is to be said कि भाई business is to be done with a proper set of standards. ऐसा नहीं कि आप करप्शन कुछ कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो वो उसमें जाएगा बिजनेस इथिक्स. यहाँ पे क्या लिखा है मुझे बताओ. इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स. इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स. क्वेश्चन नंबर व्हाट 2. Ethics is a requirement for human life. It is our means of deciding a course of action. मुझे एक बताओ. A proper foundation of ethics requires a standard of value which all goals and actions can be compared. This is our ultimate standard of value, the goal in which an ethical man must always aim. तो वही बात कर रहे हैं कि एक ethics के लिए why it is important, so it is to be compared, compiled with a set of standards. Next, very very important. मैंने इसके लिए आपको एक बोला कि I've just prepared a short memory technique for this. तो सबसे पहले जो आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. ओके, नाउ द मेन पॉइंट इज व्हाट, मतलब सेवन प्रिंसिपल्स से सर कितना समय लगेगा इसको रट्टा मारने को. ठीक है, इट इज ऑल एक्सेप्टेड. द पॉइंट इज व्हाट, अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. पब्लिक लाइफ का मतलब क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं. जो लोग पब्लिक ऑफिस में बैठते हैं, जो आर रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी, आपका कॉर्पोरेशन हो गया, फिर बैंक्स हो गए, जो पब्लिक बैंक है वो हो गए. ठीक है, so where people are responsible to the society. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक मिथ है. मिथ ऐसा है कि अरे यार जो बैंक के भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लंच ब्रेक बहुत ज्यादा लेते हैं, टाइम पे काम नहीं करते वो लोग. ठीक है, वेरी डिलेड इन रिस्पॉन्स एंड ऑल दैट. इफ यू गो टू प्राइवेट बैंक, वो आपको इमीडिएट क्या करेंगे, इमीडिएट सर्विस देंगे. सो दीज आर थिंग. तो भाई साहब एक कमिटी बिठाई गई थी, उन लोगों ने 7 प्रिंसिपल्स निकाले पब्लिक लाइफ के. पब्लिक लाइफ का मतलब ये पब्लिक ऑफिस एक्चुअली वो. ठीक है, तो व्हाट आर 7 प्रिंसिपल्स आपके स्क्रीन के सामने, आपके स्क्रीन के सामने. तो इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, बीसीसी, एंड दैट शॉर्ट फॉर्म इज व्हाट iOS, जो एप्पल का आपका आता है. और जब आप एप्पल का स्क्रीन हम ओपन करते हो, व्हेन यू अनलॉक लाइक अ न्यू फोन, उसमें होला लिख के आता है, HOLA. होला स्टैंड्स फॉर हेलो. ठीक है, तो ऐसे करके आप वो शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं. अगर आपको शॉर्ट फॉर्म, अगर वो 7 पॉइंट आपके दिमाग में जा रहे, वेल एंड गुड. नहीं जा रहे, कुछ याद करने का तकलीफ हो रहा है, तो यू कैन डू दिस, iOS HOLA. एवरीबॉडी ओके विद दिस? अच्छा, बाय द वे और एक बात ओके, इन लोगों ने यहाँ पे एक कमिटी का नाम बताया. आई डोंट थिंक दे आस्क्ड दिस, बट अपना ड्यूटी है कि वो अपने को पढ़ना है. ठीक है, चलो पे अटेंशन. अगर वापस बोलो पब्लिक लाइफ का बात नहीं चलो, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पब्लिक लाइफ, अंडरस्टैंड द बैक ऑफ द माइंड. पब्लिक लाइफ का बात नहीं चलो, पब्लिक ऑफिस की बात करें कि हाउ शुड दीस पीपल बी. ये जो लोग वहां पे बैठे हैं ना अंदर, जो पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं, जिनको सेवा करना है किनका, ये लोगों का, तो उनके प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, ये 7 प्रिंसिपल्स कमिटी ने बिठाए. सर कमिटी का नाम क्या, वो पहले बताओ. The British government appointed a committee called as a Committee on Standards in Public Life to advise the Prime Minister on ethical standards. ठीक है, the committee was established in October 1994. और ये क्यों किया था इन लोगों ने? To examine current concerns about the standards of conduct of all the holders of public office, to make recommendation, कुछ changes करने के लिए कमिटी बिठाई गई थी. ठीक है, तो अगर एकदम बाउंसर पेपर निकाल रहेगा उनको, तो ये आपको पूछ सकते हैं कि भाई साहब कमिटी का नाम क्या था. नाम क्या है? कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ. कौन सी गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया अक्टूबर 1994 में. ठीक है, नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दैट इज 7 प्रिंसिपल्स क्या है पब्लिक लाइफ. ठीक है, शुरू करेंगे, बहुत इजी है भाई साहब.
अच्छा, वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा भी एक फ्रेम कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। तो वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए तुमको पहले 7 प्रिंसिपल मालूम होनी चाहिए, तभी तुम वो आंसर कर पाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? गुड। फर्स्ट, सेल्फलेसनेस पहले गो थ्रू करेंगे, फिर आई गो टू वन वन पॉइंट। ओके, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। ओके, आप जहां पे भी बैठे हैं, यू माइट बी सिटिंग इन होम, एनीवेयर, लाइब्रेरी, क्लास एंड ऑल, प्लीज ट्राई टू कम अप विद द वर्ड्स। सिर्फ दिमाग में लेट द वर्ड्स कम आउट ऑफ योर माउथ, तो ताकि वो समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो। सो पहले क्या है? सेल्फलेसनेस। द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोलली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अरे यार, ये बताओ, जब ये लोग काम करते हैं गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस में, तो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है यार, दे विल टेल यार क्या फर्क पड़ता है, मेरा थोड़ी तरक्की होने वाला है, मैं थोड़ी आगे जाने वाला हूँ, मैं तो यहाँ पे सेवा करने के लिए बैठा हूँ, इसमें मुझे क्या मिलेगा, तो सैलरी मतलब वो भी बहुत कम है। तो वो वही बोल रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि भाई उस बंदे को, उस बंदी को काम करना चाहिए किसके लिए? सेल्फलेस करके, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। आपको बिठाया क्यों वहां पे? कि आपको सेवा करना है उनका। तो ये सबसे पहला आपका पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इंटीग्रिटी। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट अवॉइड प्लेसिंग देमसेल्व्स अंडर एनी ऑब्लिगेशन to people or organization that might try inappropriately to influence their work. They should not act or take decisions to order to gain financial or other material what benefits. तो इसका मतलब है यार, कुछ ब्राइब देना, परक्विजिट्स देना, यार प्लीज ये तोहफा ले, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो मेरे नाम पे क्या कर तू दे दे। These things might be there. तो आपका इंटीग्रिटी होना चाहिए। दो पॉइंट हुए। ऑब्जेक्टिविटी, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजंस व्हाट fairly, impartially, using the best evidence and without discrimination or what bias. आपका ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर चाहिए भाई साहब। कुछ भी हो, आपके फ्रेंड्स भी अगर बाहर है, अगर कुछ कोटेशंस पास करना है, आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पास करने हैं, मेक श्योर कि तुम इम्पार्शियल, यू आर नॉट शोइंग एनी बायसनेस ओवर देयर। समझ में आ रहा है आपको? यू हैव टू बी कंप्लीटली फेयर व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्या चाहिए? क्लियर चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई यू शुड बी रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। अगर कुछ गलती भी होता है, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड टेल कि हाँ भाई, ये गलती मेरे से हुआ। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ओपननेस, ओपननेस का मतलब एक ही वर्ड में डाल सकते हो यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट। जो भी आप कुछ कामकाज करो, दे शुड नॉट बी एनी हिडन कॉस्ट, बिकॉज यू आर सिटिंग देयर फॉर व्हाट? सर्विंग द पीपल। और अब उसमें क्या कर रहे हो? यू नॉट ट्रांसपेरेंट ओवर देयर, तो पीपल आपको विश्वास कैसे दिखाएंगे? सो भाई साहब, ओपन आप होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनेस्टी, वेरी सिंपल, ट्रूथफुल। Leadership, holder public office should be exhibit these principles in their own behavior. They should actively promote and robust support the principles to challenge poor behavior wherever it occurs. इसका मतलब क्या? आपकी सरकारी है ना ऑफिस, तो ऐसा होता है यार, चलना आपको पता है एक चीज गलत हो रहा है, बट नोबडी कम्स फॉरवर्ड एंड टेल्स दैट। सी फॉर एग्जांपल, कोई बंदा इनिशिएटिव नहीं लेता, बिकॉज सी प्राइवेट थोड़ी है, वो गवर्नमेंट है। अब बोले अगर मैंने उसको बताया कि क्या होने वाला है, पगार तो मुझे उतना ही मिलने वाला है और थोड़ी कुछ पैसे देने वाले हैं मुझे, तो वो एक ही बात करेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ जगह कॉस्ट कटिंग हो सकता है, आप इनिशिएटिव ले सकते हो, तो नए स्कीम्स आ सकते हैं, ये काम और अच्छा हो सकता है, सो प्लीज टेक द इनिशिएटिव ऑफ लीडरशिप। ये एक प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल्स। ठीक है, एवरीबॉडी ओके विद दिस? एवरीबॉडी ओके विद दिस? एक बार वापस, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ और पब्लिक ऑफिस। ओके, एक जल्दी सर, अगर हमको वो ये नहीं आया तो मैं वही बोला, iOS, iOS जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है, और होला, दैट इज हेलो। ठीक है, iOS ये आपका है इंटीग्रिटी, ये आपका है इंटीग्रिटी, दिस इज योर ऑब्जेक्टिविटी, दिस इज सेल्फलेसनेस, दिस इज ऑनेस्टी, this is openness, this is leadership, and this is accountability. ठीक है, so if you are able to do it in a very simplest manner, forget the memory technique। अगर वो आपको ये आ रहा है, तो एग्जाम में अगर एक पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है कि you write the points, सर 6 याद आ रहे हैं यार, वो 7 याद नहीं आ रहा है, so you try to stress your mind but that point doesn't come out। okay, so in that case memory technique will help you थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ रहा है? so these are 7 principles। और एक बार वापस बोलो क्या, it's the best question for the institute to put this। why? because अभी तो नया पैटर्न है, वो 7 मार्क का ही है, और ये भी 7 प्रिंसिपल्स ही है, तो उनके तो बहुत ही बेस्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये एक क्वेश्चन प्लीज कीप इट ऑन प्रायोरिटी, और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना। ठीक है, ये हो गया आपका। आई होप दिस इज डन। एवरीबॉडी राइट दिस, यस और नो? यस और नो? ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने ओपन किया, तो मैंने आपको क्या बताया कि सर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। इट्स अ वेरी स्मॉल पैराग्राफ, बट आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। बाय एमसीक्यू इसके ऊपर पूछ सकते हैं, और पूछा भी है। ठीक है, सी मैंने आपको क्या बताया भाई साहब, लॉ जो है वो सबके लिए यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। लॉ भेदभाव कभी नहीं करने वाला, गरीब है रिच है कुछ नहीं होने वाला, लॉ सबको फटका देगा। पॉइंट ऐसा है, इथिक्स कंप्लीटली चेंजेस, इथिक्स इज ऑन बिहेवियर, ऑन योर ओन बिहेवियर।
For you something might be right, the same thing might be wrong for somebody else. So it is completely upon you. आपका born and brought up कैसा हुआ है, आपके ऊपर guiding principles कैसा है, how have you guided throughout your own life, that is different for everybody out there. Okay, now आपको जो मुझे दिखाना है, आपको जो मुझे बताना है हाईलाइट करने के लिए, तो प्लीज आप हाईलाइट करेंगे. थोड़ा सा जूम इन करता हूं मैं. The relationship between laws and ethics is dash one, complex one. Please पहला अंडरलाइन करा, पूछने वाले ये लोग, ठीक है. चलो ये हो गया. Next. I'll tell you one more thing, which is your only. हाँ, here. Many laws are representative of ethics. ये लाइन हम अंडरलाइन करेंगे प्लीज. This line will you underline? This line over here. Many laws are representative of ethics. ये भी हम अंडरलाइन करेंगे. Everybody fast. ठीक है, ये दो चीज उसमें इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ प्लीज कम हियर. ओके, अभी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे. ओके, नाउ पॉइंट ऐसा है, आई डोंट नो व्हाई दिस इंस्टीट्यूट हैव डन लाइक दिस. इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ कंडक्ट दो दिए, एक तो खुद का ही दिया है और एक सीएफए इंस्टीट्यूट का भी दिया. ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन सीएफए इंस्टीट्यूट का, बट माइट बी ओनली फॉर एग्जांपल पर्पस. बट एग्जामिनेशंस में मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी पूछा है. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान चाहिए. एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है, एक बार पढ़ रहा हूं मैं, आप भी प्लीज इसको हाईलाइट करेंगे. ठीक है, शायद से जब मैंने नॉर्मल क्लास लिया था उसमें आपने हाईलाइट किया था. The role of management accounting is also described as problem solving, score keeping and attention directing. अभी ऐसा हो सकता है कि वो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि what is the role of management accounting. Chances बहुत कम है actually because it's a 3-pointer answer है. 7 marks of questions, so I think they'll ask this, but they might ask you for MCQ. Okay. The role of management accounting is also described as what? Problem solving, score keeping and attention directing. अगर आपके पास कुछ highlighter वगैरह है, please try to highlight this. Okay. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है, रोल क्या है उसका? सर रोल 3 रोल है भाई साहब. सबसे पहले क्या है, सर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके बाद स्कोर कीपिंग है और लास्ट में क्या है आपका अटेंशन डायरेक्टिंग. कैन आई जस्ट रीड आउट वन बाय वन? द फर्स्ट वन, द रोल ऑफ अकाउंटिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग द alternatives. Just for your information, ये भी पूछा गया है नीचे एमसीक्यू में. ठीक है, ये इवैल्यूएटिंग द alternatives करेंगे आप. उसके बाद score keeping records the results of various actions or manage the health assessing whether the results expected from the various actions are realized or not. score keeping का मतलब क्या है कि सर तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे एंटिटी में जितने भी आपके मैनेजर्स है, तो सबका भी भाई रेटिंग चेक करना पड़ेगा ना, ये कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, ये बी वाला परफॉर्मेंस ऐसा कर रहा है. ठीक है, उसको बोलते हैं स्कोर कीपिंग एज द वर्ड सजेस्ट. Next, attention directing. The scorekeeping function in combination with expected results and comparative analysis of various companies, divisions, or present period scores or results with previous show opportunities of focusing attention of managers to improve what? Timing. Sir, ये point है, second point से linked है. This point is linked with the second point. How it is linked? Please tell me. Sir, अगर एक scorekeeping से ये समझ में आ रहा है, अरे यार ये मैनेजर परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये मैनेजर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अरे फॉरगेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो अपने यहाँ पे दूसरा मैनेजर है वो उसके रिलेटेड भी क्या कर रहा है, कम परफॉर्म कर रहा है. तो कैन आई से वन थिंग, कैन द एंटिटी, कैन वी गो एंड टेल द मैनेजर कि भाई तुझे यहाँ पे फोकस करना है, यू नीड टू हैव अटेंशन ओवर देयर. वही लिखे पॉइंट भाई साहब. सो भाई साहब अगर एक क्वेश्चन आता है, चांसेस कम. रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने. सबसे पहला वाला क्या, सबसे पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड क्या है स्कोर कीपिंग और लास्ट में क्या है अटेंशन डायरेक्टिंग. I hope मेरे साथ तुम हाईलाइट भी कर रहे हो and you are writing also. The best part is writing highlight set. ठीक है, everybody okay with this? चला next. एक कंसेप्ट है भाई साहब, एक कंसेप्ट है आपके स्क्रीन के सामने, वैल्यू चेन. पूछ सकते हैं आपको सर, सबसे पहले एक लाइन में बताओ वैल्यू चेन का मतलब क्या है. वैल्यू चेन का मैं आपको 3 शब्द से हाईलाइट करके देता हूं यहाँ पे. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज. तो इसका मतलब क्या है, एक सिंपल फैक्ट्री का आपको बोलता हूँ वैल्यू चेन क्या रहेगा. सर अपन रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते वक्त भी अपन डिफरेंट सप्लायर्स से देखेंगे कि कौन सा सप्लायर अच्छा है, कौन टाइम पे दे रहा है. उसके बाद वो आपके प्रीमाइसेस पे आएगा, फिर क्वालिटी कंट्रोल होगा, क्वालिटी चेक होगा, उसके बाद वो प्रोडक्शन लाइन पे चला जाएगा, फिर WIP, FG एंड देन गो ऑन. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज. सो कैन आई से वन थिंग, एक चीज सगळे लक्ष द्या प्लीज, एक चेन पे, एक स्टेप पे क्या कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है कि हाँ सर हो रहा है ना. अगर रॉ मटेरियल से WIP पे जा रहा है, WIP से FG पे जा रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है. चलो, कैन आई रीड वन लाइन ओवर हियर. वैल्यू चेन इज अ विजुअलाइजेशन, इट्स अ ब्लूप्रिंट, राइट. प्लानिंग होता है भाई सबका of complete business as a sequence of activities in which usefulness is added to products or service produced and sold by the organization. Okay, चलो सर
इसमें क्वेश्चन क्या करना है वो बताओ, क्योंकि आपने तो भी डेफिनेशन बताया, एक क्वेश्चन अगर आ सकता है अगर पूछा तो उन लोगों ने, दिस वन क्वेश्चन व्हिच माइट कम, व्हाट इज दैट, डिजाइन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन एंड डिसीजंस नीड ऑफ द मैनेजर्स। अभी ये जो क्वेश्चन है ये ड्राफ्ट कैसे किया है देखो, आई थिंक मैंने क्लास में बताया था आपको, एक क्वेश्चन आपको टैकल कैसे करना है। It has to take into consideration the new themes and challenges that managers face currently. अच्छा सर, ये जो पॉइंट लिखे ना आपके सामने 1 2 3 और 4, सर ये कौन से पॉइंट है? सबको लगता है ये वैल्यूएशन के कुछ फीचर है, कुछ एडवांटेज है, कुछ कुछ नहीं है ये ऐसा बात, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो ऐसा बात करता है वैल्यू चेन आपका सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द मैनेजर्स। लेट अस से आप सीए में हो गए और सीए में होने के बाद आपको पता है कि भाई वैल्यू चेन एक तो क्या कर, एक डिजाइन कर, प्लानिंग कर, तो आपके सामने ऐसे कौन से चैलेंजेस है कि आप आपके बैक ऑफ द माइंड में रखोगे सो दैट आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो। चैलेंजेस कौन से वो आपकी स्क्रीन के सामने, अगर आपके पास कुछ हाइलाइटर है तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला चीज हाईलाइट करना पड़ेगा चैलेंजेस, ताकि आपका ध्यान वहां पे जाएगा व्हेन यू आर रीडिंग इट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, कैन वी स्टार्ट दिस पब्लिक, यस और नो? चार चीजें आपके सामने, एक बार वापस बोल रहा हूं, आज से एडवांटेजेस नो, मेरिट्स नो, डीमेरिट्स नो, फीचर्स नो, चैलेंजेस ये, ठीक है। कस्टमर फोकस, अरे भाई साहब मुझे यही बताओ, एवरी फैक्ट्री, एवरी बिजनेस, सभी धंधा एक ही चीज के लिए होता है, वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, द पॉइंट इज व्हाट सर, नॉट दैट ओनली, हमको ये भी करना पड़ेगा, वी आल्सो नीड टू सैटिस्फाई द कंज्यूमर। ऐसा ना हो कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विस बेच रहे हैं, वो कस्टमर को ही पसंद नहीं आ रहा है। सो ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड आल्सो द प्रॉफिट इनिशिएटिव। तो सबसे पहला कस्टमर फोकस, ये चैलेंज है भाई साहब। सेकंड, की सक्सेस फैक्टर, तो ये बेसिकली कौन से फैक्टर होते हैं? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, फॉर एग्जांपल व्हाट, कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम एंड इनोवेशन। तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना, अभी फॉर एग्जांपल एप्पल का, यार एप्पल का देखो ना, एप्पल बीइंग ऑन टॉप आल्सो, कैन आई से वन थिंग, वो एवरी डे कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहता है। हाँ सर, ऐसा नहीं कि टॉप में बैठा है मतलब नहीं मैं ही टॉप में हूं, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। सो दीज आर द की सक्सेस फैक्टर्स, ये भी एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है बैक ऑफ द माइंड में, दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर द मैनेजर्स। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, वही मैंने बोला। So, or Kaizen is a popular theme, Japanese people. Innovation related to these areas, costing and Kaizen costing. तो आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि continuous improvement is also a big challenge. You should not stop just by telling yourself that you are what number one. नहीं. Value chain and supply chain analysis. Value chain and strategic framework for analysis of competitive advantage. वो promoted Michael Porter. मैनेजमेंट, अगर आपने ग्रुप 2 किया रहेगा, ग्रुप 2 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में माइकल पोर्टर की जिंदगी के फास्ट 5 फोर्सेस है, टॉकिंग अबाउट दैट, मतलब वो कॉम्पिटिटर को कैसे एनालिसिस करता है। Management accounting have become very familiar with the framework and provide information to implement the framework by what strategic planners. तो यही बात कर रहे हैं कि एक चीज आपको करना है बैक ऑफ द माइंड में कि whenever you are planning something, also do not only consider your internal structure, आपको बाहर का भी स्ट्रक्चर क्या करना है देखना पड़ेगा। एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूं मैं, इतना डीप में मत जा, पर थोड़ा सा, ठीक है। ये एसएम है, स्टैटिक मैनेजमेंट में। सो जो अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बात करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं, पेस्टल करके उसका शॉर्ट फॉर्म है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। तो ये वही बात कर रहे हैं कि व्हेनेवर यू आर डूइंग एनालिसिस, सप्लाई चेन, वैल्यू चेन, मेक श्योर कि आप दोनों भी चीज क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, एंड देन यू आर गोइंग अहेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एवरीबॉडी। चलो सर, क्वेश्चन क्या था एक बार वापस बताओ सर। क्वेश्चन ऐसा था, what are the challenges being faced by the management accountants? Number one, customer focus, key success factor, continuous improvement, value chain and supply chain analysis. Okay, I hope you have done this. Now this is one more question, I think it's a very general question but पूछा गया है, पेपर go through करेंगे। मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ICA, अपना इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक क्वेश्चन है, we'll just go through it because as it is question पूछा हम लोग, ठीक है, एग्जामिनेशन। The institute has promulgated the following standards of ethical conduct for practitioners. क्या क्या है, पूरा एकदम वर्ड टू वर्ड लिखो मत पेपर, मतलब याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरल आपको लिख के आना पड़ेगा। मेंटेन ऑल टाइम्स इंडिपेंडेंस, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ही वर्ड को हाईलाइट करता हूँ, आई होप इवन यू डू द सेम थिंग। ओके, आपको इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है, ठीक है। whenever see even an auditor हो गया, you should never be dependent, okay, आपने लोन लेके बैठे हैं, okay, you are receiving gifts from the company, ऐसा नहीं होना चाहिए। next, not to express an opinion without first assessing his or her relationship with the client, define whether such member might expect his opinion to consider independent objective। तो ये है, आप जब ओपिनियन देते हो किसी एज ए ऑडिटर, एज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, आपको क्या करना है सर, जब ऑडिट करते हो आपको ओपिनियन देना होता है। जब आप ओपिनियन देते हो, मेक श्योर कि यू आर इंडिपेंडेंट फर्स्ट।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आपको पहले वो अवॉइड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा मैनेजमेंट। While preparing cost of financial report, disclose all the material facts to such member in order not to make such cost reports to acquire sufficient information। मतलब आपको लोगों को मिसलेड नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो जाके उनको बताओ कि ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी है। सो व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल पर्सन, आपको आपके क्लाइंट्स बहुत रहेंगे, तो आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा, यू शुड नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विद एनीबडी एल्स। Inform the employer or client any business connection interest with such member employer might take to have। अगर आगे जाके आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या आपका कोई रिलेटिव है वो वहां पे केएमडी पोजीशन पे एंड सच सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, तो आपको पहले हेड्स अप देना पड़ेगा किसको, मैनेजमेंट। In the course of exercising duties on behalf of members employee, all receive bargain for acquired fee without say employer or client's knowledge and consent। तो वही बात कर रहे हैं। तो whenever see you know one thing, because whenever आप ऑडिट करते हो, ऑडिट में सबसे पहले स्टेप क्या होता है सर, एंगेजमेंट होता है। सो एंगेजमेंट लेटर कंफर्म फाइनल होता है, एंगेजमेंट लेटर में आपका रेम्यूनरेशन फाइनल होता है। तो रिमेंबर वन थिंग, एक बार रेम्यूनरेशन फिक्स हो गया उसके बाद जाके आप रीनेगोशिएट मत करो, इट डज नॉट लुक गुड फ्रॉम व्हाट प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल 1 लाख कंफर्म हो गया, तो बाद में आप क्या बोल रहे हो उनको कि नहीं यार काम करना 1 लाख 10 देना, 1 लाख 20 देना, दिस डज नॉट लुक गुड एट ऑल। ओके, take all the reasonable steps in arranging and any engagement consultant, establish clear understanding of what scope and objective, very important। तो जो लोग ने 2 ग्रुप दे रहे हैं उनको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो ग्रुप 1 है, टेंशन मत लो, आई टेल यू। सो जब ऑडिट हुआ और जब ऑडिट होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर। आई रिपीट इट अगेन, बिकॉज़ जब आप अकाउंटिंग करते हैं, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं या इंडेक्स के हिसाब से करते हैं। बट जब आप ऑडिट करते हैं तो ऑडिट आपको करना पड़ता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर, एसए जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे के बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इसमें एक ऐसे करके है 210 करके, 210 इज द एंगेजमेंट का ऐसे। तो वो उसमें ऐसा बोलता है कि जब भी एक ऑडिटर और एक क्लाइंट जब आमने सामने बैठते हैं, मेक श्योर एज अ ऑडिटर कि जो भी तुम्हारा स्कोप है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, वो एज इट इज उनके दिमाग में गए क्या मैनेजमेंट में। तुमने सब कुछ लिखा कि हाँ बाबा हम ये ऑडिट करेंगे, हमको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको आपके ब्रांच का भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको आपके सब्सिडी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक भी ऑफिसर तुम्हारा हमको इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब जो भी हमको चाहिए वो ये सब कुछ लिखा है तुमने। पर मेक श्योर कि ये जो तुमने लिखा है वही सेम चीज किसके दिमाग में है, मैनेजमेंट के दिमाग में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसा होगा कि बोथ ऑफ देम आर ऑन डिफरेंट पेज, ऐसा है वो लास्ट में समझ में आया, फिर नहीं तो पहले दिन क्लियर कर लो भाई ये पॉइंट है, ये दिमाग में वही पॉइंट है क्या भाई, तो ये आपको पहले करना पड़ेगा। कंडक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टुवर्ड्स द अदर मेंबर्स विद कर्टेसी एंड गुड फेथ। यू आर द ऑडिटर, ऐसा नहीं है कि आपको इतना रुपया होना चाहिए, नहीं नहीं, और यू आर टॉकिंग वेरी रूडली विद अदर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है, कर्टेसी विद गुड फेथ, ओके। Not to accept any engagement to review the work of other member, the same employer, except with the knowledge of that member or except with the connection of the member with the work। ऑलरेडी एक सीएम वहां पे अपॉइंटेड है, आपने जाके क्या किया, नहीं आपने जाके उसको बोला कि मुझे काम दो, अब इसको निकालो, ऐसा नहीं आप करना चाहिए, ठीक है। नॉट टू अटेम एनी गेन एंड एडवांटेज ओवर द अदर मेंबर्स फॉर पेइंग एनी कमीशन ऑन। आपको एक चीज पता है क्या कि जब भी आप ऑडिट करते हैं, माइट बी सीएस सीएमएस सीएस, आप कभी भी कस्टमर को सॉलिसिट कर नहीं सकते। तुम्ही कधी बघितलं नसतील बोर्ड, आपने कभी होर्डिंग देखा रहेगा एकदम बड़ा बड़ा कि मैं सीए मैं सीएम मैं सीएस हूं और मुझे काम चाहिए, नहीं अलाउड नहीं। सो इट इज ऑन वर्ड ऑफ माउथ, there's some exceptions to it, but word of mouth is the best thing। you will never see any person no going and flaunting कि नहीं यार come to me I'll save tax, मैं बहुत भारी काम करता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको ऐसा करना नहीं है, this is your professional conduct, okay। not to act maliciously in a fraudulent manner, all time maintain standards of competence। आप एक ये हो, whenever you become a CMA you come under the radar of the institute, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो पढ़ रहे हैं अपन, आपको फॉलो करने पड़ेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके। एंड अंडरटेक ओनली सच वर्क व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट, मतलब अगर आपको कुछ काम आता नहीं है तो आप क्लियर कर बोलो कि ये काम आता नहीं, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट वर्क। तो यू शुड ऑलवेज टेल, यू शुड अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। समझ में आ रहा है, आपको वापस बोलो क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, डोंट गो लाइक वेरी, आई नो इट्स अ जनरल थिंग बट कैन जस्ट राइट सिंपल थिंग्स इन दिस काम, ब्लैंक मत छोड़ो ये क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ 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 हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी पे अटेंशन। जब मैंने शुरू किया लेक्चर तो फर्स्ट आई वेंट टू द पीडीएफ, पीडीएफ में ये वाला क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट। और मैं आपको वो भी बताया कि ये 3 चीजें रिगार्डिंग एम्प्लॉयर्स फाइनेंस एंड ट्रेडिंग शायद से आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में अगर आपने ये पढ़ा नहीं रहेगा तो, ठीक है, समझ रहे हैं। प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डिसीजंस इन रिगार्डिंग एम्प्लॉयर्स फाइनेंस एंड ट्रेडिंग, ठीक है। तो भाई साहब
ये कुछ ऐसे इथिक्स है, ऐसे मैं कुछ प्रिंसिपल्स बोल सकता हूँ, ठीक है, जहां पे एम्प्लॉयर्स फाइनेंस एंड ट्रेडिंग में यूज होता है। आपको उस एंगल से लिखना नहीं है कि ये एम्प्लॉयर का एंगल, ये ट्रेडिंग का एंगल, ये फाइनेंस का, ऐसा लिखना नहीं है आपको, ठीक है, कॉमन सेट ऑफ आंसर। ये आंसर आपके दिमाग में बैठना चाहिए, बहुत इजी है। चलो सबसे पहले सर क्या क्या पर्सनल, एक बार पे गो थ्रू करेंगे। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, इसके बाद रिस्पेक्ट, ट्रस्टवर्दीनेस, फेयरनेस, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 7 है, ठीक है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वो 7 प्रिंसिपल अलग है, वो 7 प्रिंसिपल पब्लिक लाइफ है, ये नॉर्मल है, ठीक है। जहां पे भी आपको ये वाला क्वेश्चन लिखेगा ना, एम्प्लॉयर्स फाइनेंस एंड एक ही क्वेश्चन तुम्हारे पीछे, ठीक है। तो भाई साहब आपका ये वाला आंसर लेना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज आंसर? सर मेनी काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, each person who works for business, whether on the executive level or entry level, will be expected to show personal responsibility. और accountability बोल सकते हैं, अभी आया था वर्ड एक ऊपर, accountability. Completing task on your manner, मतलब अगर आपको काम नहीं हुआ है, डिले काम हुआ, कुछ गलती हो गई, you should come forward कि हाँ बाबा, I am responsible for this, ये पहला वाला। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कॉर्पोरेट भी रहेगा। अगर कंपनी से कुछ गलती होता है तो कंपनी विल कम फॉरवर्ड, वो एक नोटिस इश्यू करेगा लोगों को, यार हाँ बाबा हमारे से गलती होगी। Loyalty, both business and employees are expected to show about loyalty. Employees should be loyal to their workers. ऐसा नहीं है एक तरफा है, वो दोनों लॉयल चाहिए। तो कभी कभार लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, इसका मतलब क्या है कि नहीं मुझे यही ब्रांड का चाहिए, वो भले कितना हो। एक सिंपल आपको एग्जांपल दूं क्या, मैं आईफोन, अभी आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब उसमें लॉयल्टी भर भर के, मतलब एप्पल एवरी ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरी ईयर विल कम अप विद द फोन। अभी आईफोन 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। पर एक चीज आपने देखा है क्या, वो लॉयल्टी जो लोगों का है वो कभी जाएगा नहीं, दे विल गो देयर ओनली। मतलब भले वो दिखने में सेम है फोन, पर नहीं मैं जाके वहां पे 1.5 लाख डालूंगा ही, दैट इज लॉयल्टी। तो इवन आईफोन गिव समथिंग बैक, नहीं सर आईफोन आईओएस का फीचर भारी देगा, आईफोन विल कम अप समथिंग न्यू। अगर 1.5 लाख अगर वो बेच रहा है तो थोड़ी वो सिर्फ कवर डाल के देगा क्या ये आईफोन 16 है, नहीं उसमें वो नया फीचर भी देगा वो। Respect. Respect is an important business ethic, both in the way of business treats its clients, customers, and employees, and also in the way of employees treat. When you show respect to someone, person feels like what? Valued member. तो एक simple example दो आपको इसका business का। तो अगर आपने कहाँ पे शॉपिंग किया रहेगा, दिवाली शॉपिंग में, यू गिव योर ईमेल आईडी, यू गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड सो ऑन, उसमें वो एक फीचर आपको, मतलब एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे यार वो व्हेन इज योर बर्थडे, और बर्थडे पे क्या होता है, बर्थडे पे आपको एक मस्त की मैसेज आएगा, ये आपको ईमेल आईडी आएगा, या आपको फोन आएगा कि ड्यू टू योर बर्थडे यू हैव गॉट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यू फील अरे यार क्या बात कर रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, यस। तो ये आपको क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये आपको रिस्पेक्ट कर, ठीक है। नेक्स्ट, trustworthiness, very simple. A business cultivates trustworthiness with the client, customers through honest, transparency, and reliability. So, जब trust का नाम आता है, तो Tata is on the top of the list. Okay. Now, Tata has shown a lot of transparency in their businesses as compared to any other business in India. Okay. So that is also there. तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि trustworthiness में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का भी बात आता है कि बहुत सारे बिजनेसेस के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। नाउ यू टेल मी वन थिंग, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, whenever you like use this apps, can I say one thing, स्विगी एंड जोमेटो के पास सबके एड्रेसेस है, हाँ सर, नहीं तो वो आपको भेजे कैसे खाना, तो कैन दे मिस यूज योर एड्रेस, हाँ सर वो कर सकते हो, डेटा तो ऑलरेडी उनके पास है। These companies needs to make sure if they are not doing what, selling the confidential information to anybody. This will be called as what, trustworthiness। समझ में आ रहा है? Next, fairness. Business exercise fairness, applying the same standards for all the employees regardless of rank, the same expectation with regard to honesty, integrity upon entry level. The businesses will treat its customers with equal respect, offering the same business services to all। मतलब ऐसा नहीं कि भेदभाव थोड़ी करेंगे, fairness है ना। So even if a very normal person walks in a very big, let us say वो Louis Vuitton का शोरूम है, आपका गुच्ची का शोरूम है, उसमें एक नॉर्मल बंदा जाता है, तो वो नहीं बोलेंगे कि उसको नहीं 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 तू निकल यहाँ से, ऐसा नहीं है। तो business should be fair to everybody, ठीक है। they should not discriminate over there। Community and environmental responsibility, profit छापो but make sure that you are not harming the environment, as simple as that। 7 pointers, I hope you have written it down, I hope you have written it down everybody, I hope you have written it down। Okay, चलो next, I was talking about this, एक तो अपने अपने इंस्टीट्यूट का किया, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का अपने किया ऑलरेडी, ठीक है। अभी ये और एक इंडियन कोड ऑफ एथिक्स है जो किसका है, सीएफए का है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दिस बट दे हैव पुट इट, सो वी नीड टू डू इट। ओके, सो और हाइट वाला क्वेश्चन भी हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द सीएफए वेबसाइट, मेंबर्स ऑफ सीएफए इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग सीएफए कैंडिडेट्स फॉर सीएफए मस्ट एडयर टू फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो, वी डोंट वांट टू लीव आउट एनीथिंग। ओके, act with integrity, competence, diligence, important।
place the integrity of the investment profession and the interest above their own personal. Obviously, अगर आप CFA हो, what is CFA basically? Chartered Financial Analyst. So these people go and become investment bankers, investment advisors to everybody. लोगों का पैसा वो हैंडल करते हैं और लॉट ऑफ बिग पोर्टफोलियो दे हैंडल. तो जब लोग आप मतलब उनका पैसा आपको देते हैं ताकि आप स्टॉक मार्केट में ये करो, तो वो आपको ट्रस्ट करते हैं बहुत. तो ऐसा ना होना चाहिए कि भाई आपने उससे पैसा लिया है पर आप खुद ही प्रॉफिट छाप रहे हो. आपने उसके नाम पे डाला ही नहीं स्टॉक मार्केट में, तुम्हारे नाम पे डाला वहां पे. ऐसा नहीं चलेगा. यू शुड कीप योर गोल्स एट अ वेरी लोअर लेवल एंड देयर इंटरेस्ट एट अ वेरी हाई लेवल. use reasonable care and exercise independent professional judgment when conducting what investment analysis. तो वही बात कर रहे हैं वो कि भाई साहब you are a professional. CFA stands as a professional. You have to make a professional judgment because see, जब लोगों का पैसा बीच में आता है, जब आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं, you have to be thorough with everything. आपको इन्वेस्टमेंट रिसर्च करना पड़ेगा पूरा. ठीक है. Practice and encourage others to practice professionally and ethically. What will reflect credit on themselves and the profession. मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, लेट से आपका कोई असिस्टेंट है, आपको उसको भी बोलना पड़ेगा कि भाई तू भी प्रैक्टिस प्रोफेशनली कर. Promote integrity and viability and maintain and improve the professional competence. To strive and maintain improve the competence of other investment professionals. ठीक है. Just go through this. It's a very simple question. ठीक है. चलो next. Where's emotional intelligence? ये अपन करेंगे, ये ऑलरेडी दिखा है मैंने पीडीएफ में सब कुछ. ठीक है. ये ऑलरेडी डन दिस. इट्स देयर इन द पीडीएफ. ओके. ये स्टडी है. हाँ चलो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज कम टू दिस 3.10. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके. इथिक्स में अगर कुछ करना है तो ये तो आपको करना ही है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंफर्म है. ठीक है. सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है. मैंने क्या बताया आपको, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए. ठीक है. ऐसा मत करो कि सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस देख के हाँ मैंने वो ये आंसर लर्न किया मैं जाके यही छापूंगा वहां पे. ऐसा मत करो. ठीक है. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज. ओके. चलो. अच्छा बाय द वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. सब दो ये होते हैं. तो यहाँ पे लिखा है एक आईक्यू और एक ईक्यू होता है. इंटेलिजेंट क्वोशिएंट और इमोशनल क्वोशिएंट. ओके. ability to understand, use and manage your own dash, manage your what emotions. ठीक है. कभी कभार whenever see many people handle emotions very very relaxedly. Some people they don't handle emotions. ये कभी कभार कैसा होता है एकदम rage, out of rage they say something, short temper होता है. तो ये सब कुछ इसमें लिखा है. How you are able to maintain a balance on your emotions. ठीक है. Pay attention please. इससे क्या होता है, अगर मैनेज करेंगे आप तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने वाले. ठीक है. दो तीन क्वेश्चंस है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. What are the four attributes? What are the four attributes of emotional intelligence? ये एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पीडीएफ में भी डाला है मैं. What are the four attributes? Attributes का मतलब क्या? Characteristics. What are the features of what emotional intelligence? आपके सामने है. 4 है. 5 लिख के मत आओ. 5 है ही. ठीक है. Self management. You're able to control impulsive feelings and behaviors, manage your emotions in healthy ways, take initiative, follow through on commitment, adapt to changing what circumstances. Impulsive का मतलब क्या होता है? एकदम अप्रोच. मतलब you have very very quick this spontaneous very quick emotions. तो how you are able to manage those? आप बैलेंस कैसे कर रहे हो उसको? ये होता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट. कभी कभार आपको गुस्सा आता है पर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई हाँ बाबा आपने शांत रहने का. ठीक है. दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. Self awareness. You recognize your own emotions and how they affect your thoughts and behavior. You know your strengths and weaknesses and have what? Self confidence. You are aware about your own emotions. सबसे पहले आपने बोला self management. Second is what? Self awareness. You know, see, your आपसे ज्यादा और कोई आपको नहीं पहचान सकता. You are the only person who understands you very well. You know your strengths, you know your weaknesses also. Okay, so you need to be aware of that. Social awareness. You have empathy. You understand the emotion, needs and concerns. इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? कि remember one thing. Whenever you are talking in society, let us say some friend comes up to you. Let us say उसके घर पे बहुत recently death हुआ है. So the way you talk, your tone and all that is very low. अब एकदम उसको aggressive बात नहीं करते. आपको पता है यार, there is a feeling of empathy in everybody. Relationship management. Develop and maintain good relation. Communicate clearly, inspire and influence others. Work well in a team and what? Manage your conflict. Okay. This is basically what your relationships. Okay. Relationship with your spouse, relationship with your friends, relationship with your principal. So that you need to manage. 4 चीजें हैं. चारों भी चीजें इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से अगर आपने लिखा बुक में आप इट विल बी वेरी गुड. प्लीज राइट इट डाउन. प्लीज राइट इट डाउन. ओके. देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. काही नाही 2 मिनिटं लागणार नाही. 2 मिनिटं म्हणून पट 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 लिहा. ठीक है. सर मैंने ऑलरेडी लिखा है, कोई बात नहीं और भी लिखो. There's no problem at all. 15 मार्क्स हाथ की 15 मार्क्स ये सब कुछ. ठीक है. सबसे पहला क्या है सर? सेल्फ मैनेजमेंट. सगळ्यात पहिला सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ अवेयरनेस. नेक्स्ट सोशल अवेयरनेस और फोर्थ क्या है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट.
रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वापस करेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। तो भाई साहब अगर एट्रीब्यूट्स पूछते हैं, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, व्हाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस सो इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो पे अटेंशन प्लीज। It is not the smartest people who are the most successful humans. You probably know people who are actually brilliant. मतलब वही बात करेंगे भाई, IQ is not everything. Your EQ must be very high. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस के अफेक्ट किस किस को करता है? सबसे पहले योर परफॉर्मेंस एट स्कूल और वर्क, सेकंड योर फिजिकल हेल्थ, पे अटेंशन, योर मेंटल हेल्थ, और लास्ट में योर रिलेशनशिप। ये सेम दो ही क्वेश्चन है भाई साहब, दो ही क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, वापस बोल रहा हूं। उसके बाद अपना एमसीक्यू धर 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 कर देंगे अपन। चलो फास्ट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहले अपने चार एट्रीब्यूट किए, वो इजी लगा हमको, और ये सेकंड है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस अफेक्ट किस किसको करता है? परफॉर्मेंस एट स्कूल और वर्क। High emotional intelligence can help you navigate the social complexities of the workplace, lead and motivate others, excel in your career. In fact, when it comes to gauging important job candidates, many companies now rate emotional intelligence as important and technical ability and employ EQ testing before what hiring. अच्छा, तो स्कूल का बात करें, स्कूल का एग्जाम में आप वर्क का भी कर सकते हो। तो व्हेन पीपल स्टार्ट गोइंग फॉर जॉब्स एंड ऑल, आजकल क्या हो रहा है, वो ठीक है आईक्यू तो चेक करते हैं, पर आपका इमोशनल क्वेश्चन भी चेक करते हैं। इमोशनल वही कि आप एक ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहे हैं, how are you able to maintain relation with other, are you able to survive in a group, क्या आप कम्युनिकेटिव हो, ये सब कुछ भी चेक करेंगे। ठीक है, सेकंड योर फिजिकल हेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अनेबल टू मैनेज योर इमोशंस, यू आर प्रोबब्ली नॉट मैनेजिंग योर स्ट्रेस, दिस कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स। क्या बात कर रहे हैं, अगर आपका आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एकदम शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, तो इसका मतलब कैसे आपका बीपी ऊपर नीचे होने वाला है, और बीपी ऊपर नीचे हुआ इसका मतलब आपके स्ट्रेस लेवल्स आपके वो ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज, इफ यू सी देयर आर मेनी यंग पीपल आउट देयर हु आर गेटिंग हार्ट अटैक्स, तो देखा भी रहेगा बहुत जल्दी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। द पॉइंट इज व्हाट, वो उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। सो व्हेनेवर समथिंग इज रॉन्ग इन योर लाइफ, इट्स कंप्लीटली ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रॉन्ग हो रहा है, तो भाई साहब आप एक नहीं हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। You need to talk with everybody, you need to come out, you need to talk with everyone. That is how you manage your stress. You have to manage your emotions. ठीक है, so many people they have second thoughts whenever emotions go out of hand, stress बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, you please try to what communicate with everybody else. Okay, remember one thing, you're not the only person in the entire world having problem, there are a lot of people having the same problem in mind. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया हम लोगों ने कि अगर इमोशनल ये जो इमोशंस है, अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किए, तो आपकी हेल्थ के भी ऊपर भी क्या करेंगे, वो इम्पैक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, योर मेंटल हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। अनकंट्रोल इमोशन एंड स्ट्रेस कैन आल्सो इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ, मेकिंग यू vulnerable to anxiety and depression. Able to understand, get comfortable, manage your emotions, वही सेम जो इम्पैक्ट आपका फिजिकल हेल्थ के ऊपर है, वो सेम इम्पैक्ट, the word called as depression comes from there only. If you're not able to tell anyone, if you're not able to communicate to everybody, तो इससे ये हो सकता है कि फिजिकल तो प्रॉब्लम हो गई, बट मेंटल भी आपका क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ने वाला है। ठीक है, और लास्ट में relationship, by understanding your emotion, how to control them, you are able to express how you feel, understand how others, this allows you to communicate more effectively and forge stronger relationships both at work and in personal life. So if you're able to tell everybody what is happening, your relationship will be more what, strong and confident. Okay, so चार पॉइंटर्स है, चार पॉइंटर्स EQ के। सबसे पहले परफॉर्मेंस स्कूल और वर्क, सेकंड फिजिकल हेल्थ, थर्ड मेंटल हेल्थ, और चौथा क्या आपका रिलेशनशिप्स। ओके, दैट्स द एंड ऑफ योर इथिक्स। ये आपका इथिक्स का द एंड है, ये आपका इथिक्स का द एंड है। आई होप आपने क्या रहेगा। नाउ इफ यू आर वाचिंग द लेक्चर, आई वांट एवरीबॉडी टू गिव मी आंसर्स फटाफट। ये देख के मत दो, ये भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से आपने सब कुछ कवर किया। आई थिंक यू शुड बी इन अ वेरी प्रॉपर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड इथिक्स क्या है, लाइन में पहले बताया था मैंने। रिलेशनशिप विद लॉ एंड इथिक्स व्हाट सर, इट इज कॉम्प्लेक्स। Many laws are dash ethics of time. So many laws are representative of what? Many laws are what? Representative of what? Ethics. Laws gives us certain right because all humans are born what? All humans are born what? Sir, equal. All humans are born what? Equal. Next, the role of accounting in problem solving should provide information useful in what? Sir, evaluating until मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मैंने ऊपर हाईलाइट किया, नीचे एमसीक्यू में पूछा है। Ethics are a set of moral principles that guide a person's behavior. Following is the disadvantage of business ethics. Advantage ढूंढने का नहीं, disadvantage। सबसे पहले देखेंगे, through increasing moral and trust, business can increase their market share। सर ये advantage है। Publicity due to well and ethical performance, सर ये भी advantage है। Acceptance of products of the company by the public, अगर आप very good है ethics में, तो आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बचता एक ही है, diversity in achievements, ये आपका आंसर। ठीक है, true or false,
The term ethics is derived from Latin word ethos. Can you please tell me it's a true or false? Anybody? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है? The first one. Can you please tell me is it true or is it false? Is it true or is it false? The first one. True or false? Sir, yes sir, बहुत simple है, ये तो true है. Ethics is a requirement for what? Human life. Ethics is a requirement of human life. आपको दिखाओगे ये कहाँ पे ये word? One second. आपको एक बताओगे अभी आपके बॉडी में आपको एक चेक करना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो इन लोगों ने. See what they've written. Ethics is a requirement for human life. Ethics is a requirement for human life. Sir, इसका मतलब ये true sentence है, ठीक है? Ethics is a requirement for human life. Can I just go down over here? Where it is. Ethics is a requirement of human life. ये ट्रू है, ठीक है? नीचे आंसर रॉन्ग दिया है उसका, ट्रू प्लीज करेक्ट करेंगे वो, ठीक है? इवन दिस इज ट्रू, नीचे फॉल्स दिया है, ये वाला आंसर ट्रू है, ठीक है? द बिजनेसमैन हु डू नॉट फॉलो बिजनेस एथिक्स विल हैव अ शॉर्ट टर्म सक्सेस, दे विल फेल इन द लॉन्ग रन, ये भी ट्रू है आपका. इट इज अ प्रैक्टिकल सेंस इज नोन एज मॉरल एक्शन एंड अप्लाइड डिसिप्लिन, ट्रू है. मेटा इथिक्स डील विद नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, मैंने क्या बताया? एम को एम, ये भी क्या है भाई साहब? ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, एवरीबॉडी ओके विद दिस? एवरीबॉडी ओके विद दिस? मैं आपको वापस बोल, सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, नीचे आपको फॉल्स दिखेगा वो रॉन्ग है, वो आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, सेल्फलेसनेस मींस द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोलली इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? सर आप इसमें मैंने क्या बताया आपको? सेल्फलेसनेस में आपका इंटरेस्ट आप आगे रखेंगे या पब्लिक का इंटरेस्ट आगे रखेंगे? सर पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट सर, पब्लिक का इंटरेस्ट. मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, एमसीक्यू जो किए ना आपने वही आएंगे आपके एग्जाम से. इंटीग्रिटी मींस so the holders of what must avoid placing themselves under any obligation. Holders of what? Public office. Public office. वही जो 7 प्रिंसिपल किए थे आपने पब्लिक लाइफ का. Accountability means that the holders of public office are accountable to the public for the decisions and actions and must submit themselves to the what? Necessary to ensure this. Submit themselves to any scrutiny. मतलब वही बात कर रहे हैं, अगर कुछ गलत नहीं किया आपने तो आपको डर किसका है? तो वही होता है, you should be very open to scrutiny. करना है तो आप कर सकते हैं scrutiny, there is no problem. Openness means that the holder of public office should act and take decisions in an open and what manner? Sir, transparent manner. In what manner? Transparent manner. Very simple. Pay attention, please. Fifth one. Objectivity means that the holder of public office must act and take decisions impartially, fairly, and on merit, using the best evidence and without discrimination or biasness. Or what? Biasness. ठीक है? चला हे झालंय. हे बाकीचं काही गरज नाही खाली करायची, ऑलरेडी पीडीएफ में सब कुछ ऑलरेडी है, ठीक है? तो अगर हम लोग को वन क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? पे अटेंशन नाउ प्लीज. दिस वाज द, अच्छा लेट मी गो फ्रॉम ऊपर. ये वाला क्वेश्चन था. आई थिंक मेरे हिसाब से 11 क्वेश्चंस आर देयर, 11 क्वेश्चंस आर देयर. फुल इथिक्स लिया है अपन ने. आप एक काम कर सकते हैं, कैन जस्ट गो थ्रू दिस 11 क्वेश्चंस एंड आपको पूरा का पूरा इथिक्स हो जाएगा. इसके अलावा आपको कुछ भी करना नहीं इथिक्स के लिए, ठीक है? एक बार वापस बोलता हूं मैं. yesterday we completed कंपनीज एक्ट. yesterday कंपनी एक्ट खत्म किया अपन ने. कंपनी एक्ट के बाद आज अपने जानबूझ के इथिक्स दिया पहले. व्हाट हैपेंस